Today we are going to discuss about the chest tube drainage system. Anyone has an idea about the chest tube drainage system or what is chest tube, how it get inserted, how it get removed? Yes, Tanzila, have you any idea about chest tube insertion? यस मैम मैं बताऊँ मैम Yes, Saima, बताएं. मैम चेस्ट ट्यूब प्लूरल कैविटी में करते हैं जैसे निमोथोरेक्स है हीमोथोरेक्स है Very good. और कोई ट्रॉमा वगैरह में करते हैं और ड्रेनेज के लिए मैम Okay. It can be the accumulation of air, it can be the accumulation of blood, it can be accumulation of any type of fluid in the pleural space or the pleural cavity. What is pleural cavity? Arya, Tanzila, Naila Kamar. Arya, I'm talking about the pleural cavity, not fluid. What do you mean by the pleural cavity? Saima, can you explain about the pleural cavity? Huma Sumaira. मैम ये Yes, ma'am. जो Pleural Yeah. cavity between the two layers of the pleura. Okay. So, pleural cavity, as told by Huma, that it is the space between the two layers of the pleura. Okay. There are the two layers. First one is the parietal pleura. Second one is the visceral pleura. Okay. Parietal pleura is the outer layer, or the visceral layer is the outer layer. राइटल इज आउटर मैम Okay. Parietal is the outer layer, and visceral pleura is the internal layer, and between them there is the small amount of serous fluid that helps to uh, prevent the layers from friction. ठीक है, so they can glide freely over each other. तो जैसे हम बात करते हैं कि it can help out in inspiration and expiration, that is due to the serous fluid in the pleural cavity. Okay, if there is any abnormality, as told by Saima, it can be the accumulation of air, it can be the accumulation of blood, it can be the accumulation of lymphatic fluid. So it can lead to the interference with the expansion of the lung. Okay. So here is the chest tube drainage system. The chest tube drainage system returns negative pressure to the intrapleural space. Normally, is there negative pressure or is there positive pressure? अगर हम respiration की बात करते हैं या अगर हम thoracic cavity की बात करते हैं, वो negative pressure maintain करती है normally या positive pressure maintain करती है? Yes, it maintains the negative pressure. ठीक है, and chest tube works according to the negative pressure to the intrapleural space. The system is used to remove abnormal accumulations of air, that is known as the pneumothorax, and fluid. It can be the hemothorax, it can be empyema, it can be chylothorax, that is the accumulation of the lymphatic fluid in the pleural space. So all these problems can lead to the chest tube insertion. Am I clear that what's the purpose of the chest tube and how the normal respiration occurs? It occurs through the नेगेटिव प्रेशर. जो आपकी, अगर हम प्लूरल कैविटी की बात कर ले, हम थोरेसिक कैविटी की बात करें, सो देयर इज द नेगेटिव प्रेशर. ओके, when you are going to insert the chest tube, this is important. So what is the position for the patient? Okay, position the patient lying flat on their back or with the upper body elevated at a 45-degree angle, that you can done the chest tube insertion in the flat position as well as in the sitting position. वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस पोजीशन में हम chest tube insert कर सकते हैं. Then raising the patient slightly helps prevent the diaphragm from moving upward, which reduces the chance of incorrectly placing the chest tube into the abdominal cavity. What's the purpose of this position? That you are raising the patient slightly because it helps the prevent the diaphragm from moving upward. Okay. Then here is the position. There can be the flat position. There can be the sitting position. There can be the slightly upward position in which the patient's hand is behind the head.
ठीक है। और इस तरह से भी सिटिंग पोजीशन हो सकती है। सो माइल्ड टू एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, कि जो माइल्ड टू एंटीरियर, सॉरी मिड टू इंटीरियर ऑक्सिलरी लाइन है, आप वहां पे चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करते हैं। और कहाँ पे? फिफ्थ और फोर्थ इंटर कॉस्टल स्पेस। ओके, ये भी आपको आ सकता है कि कहाँ पे आप इंसर्ट करते हैं, कौन सी स्पेस होनी चाहिए। सो इट कैन बी द फोर्थ और द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। आप 45 डिग्री एंगल पे भी कर सकते हैं, आप फ्लैट पोजीशन में भी चेस्ट ट्यूब इंसर्शन कर सकते हैं, ये प्रोसीजर कर सकते हैं। सो इंसर्शन, द लोकेशन फॉर इंसर्टिंग ए चेस्ट ट्यूब वेरीज डिपेंडिंग ऑन बेस्ड ऑन द क्लिनिकल रीजन फॉर इट्स प्लेसमेंट, दैट it can vary, but mostly it occurs in the fourth or the fifth intercostal space. So fluid tends to accumulate in the lowest part of the chest cavity, whereas air gathers in the upper non-dependent areas. ठीक है। So when treating a pneumothorax, the preferred site for the chest tube insertion is usually through an incision made at the fourth or the fifth intercostal space, जो हमने previous slide में भी देख लिया था। ठीक है, that it the insertion of the tube into the fourth or the fifth intercostal space. So if your patient has the pneumothorax, what would happen with the lung? लंग कोलैप्स हो जाता है, लंग ओवर एक्सपेंडेड हो जाता है निमोथोरेक्स में या किसी भी फ्लूइड अकामुलेशन में। यस, व्हाट हैपेंड विद द लंग? इकरा। लंग कोलैप्स हो जाता मैम। वेरी गुड, लंग कोलैप्स हो जाता है। सो व्हाट्स द पर्पस ऑफ द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन? टू री एक्सपैंड द लंग। Alternatively, the second intercostal space at the mid-clavicular line is sometimes recommended as another viable insertion point. कि अगर फोर्थ और फिफ्थ, मोस्टली जो है हम इसको प्रेफर करते हैं, 99% इंसर्शन साइट इज द फोर्थ और द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। अगर कहीं आपको इससे रिलेटेड कोई हिंट आ जाता है या इसी तरह से, तो आप कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन इंसर्ट इट इन द सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस। ओके, chest tube topic is very much important according to the NCLEX point of view, that what happened with the drainage collection chamber, what happened with the suction chamber, and what happened with the water seal chamber, and what is the purpose of all these three chambers. This topic is very much important. Okay, so the drainage collection chamber is located where the chest tube from the client connects to the system. So chest tube drainage system has the three portions. First one is the, or the three chambers. First one is the drainage collection chamber. किस किसने chest tube वाले patient को observe किया है या कभी attend किया है? Yes. मैम मैंने किया है। Okay, साइमा, आपने किया है। तो आपको पता है कि सेक्शन की अगर हम बात करते हैं या चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो कितने टाइप के हो सकते हैं? हुमा, सुमेरा, आपने कभी अटेंड किया पेशेंट? मैम अटेंड तो नहीं किया, लेकिन काफी टाइम मतलब पुल आउट होते हैं तो फिर देखते हैं दूसरी वार्ड्स में कि उनके चेस्ट ट्यूब या आईसीयू में वहाँ पे उनकी इंसर्ट होती है। ओके, तो okay, very good. So you all have the idea about the chest tube. Okay. Now, what's the purpose of all these chambers? The drainage from the tube drains into and collect in series of calibrated columns in this chamber. Okay. That drainage collection chamber will collect the drainage from the, it can be blood, it can be fluid. So the drainage collection chamber can drain the fluid into the drainage collection chamber. Okay. And in which chamber? Calibrated columns, with a series of calibrated columns. Okay. Okay, here is the um, एक मिनट, मैंने इसके अंदर एक फिगर डाली थी, आई थिंक सो वो, यस, दिस वन। ठीक है, here is the collection chamber, that is the calibrated, जिसके ऊपर मार्किंग हुई भी होती है, that it is 10 ml, 20 ml, 30 ml. So this is the drainage collection chamber. Okay, here is the water seal chamber, and here is the suction control chamber, to which you can attach it to the wall section, to the suction machine.
Okay, so here is the suction pot. Okay, यहाँ तक clear है? That what are the chambers? There are the three chambers. First one is the drainage collection chamber, second one is the water seal chamber, third one is the suction control chamber, and this is the air leak system, and we will discuss it into the next slides. Okay, next one is the water seal chamber. मैम ये पिछली स्लाइड में लिखा हुआ है कनेक्ट टू द सिस्टम, क्या मतलब है कनेक्ट टू द सिस्टम? ओके, कनेक्ट टू द सिस्टम। अभी मैंने आपको क्या कहा कि आपके पास थ्री चैम्बर्स हैं। फर्स्ट इज द ड्रेनेज कलेक्शन चैम्बर, सेकंड इज द वाटर सील चैम्बर, थर्ड इज द suction chamber. That suction chamber should be attached to the sucker machine or to the wall suction apparatus. ठीक है? अगर आपने कभी चेस्ट ट्यूब वाला पेशेंट अटेंड किया हो, या आपने अगर अब आप देखिएगा कि कहीं अगर चेस्ट ट्यूब वाला पेशेंट है तो आपने उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हम उसको सक्शन के साथ अटैच कर देते हैं ताकि फ्लूइड है या एयर है वो ड्रेन हो सके और आपके जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड हो सके। ठीक है, सो द टिप ऑफ द ट्यूब इज अंडर वाटर अलाउइंग फ्लूइड एंड एयर टू ड्रेन फ्रॉम द प्लूरल स्पेस एंड प्रिवेंटिंग एयर फ्रॉम एंटरिंग द फ्लूइड स्पेस. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वाटर सील चैम्बर? वाटर सील चैम्बर is required for allowing the fluid and air to drain from the pleural space into the drainage system, but Yes, it doesn't allow the air from the external environment to get into the pleural space. So basically हम क्या कह रहे हैं कि जो pleural space के अंदर fluid accumulate हुआ था या उसके अंदर जो air accumulate हुई थी वो तो remove हो जाए, but जो external environment से air है वो आपकी प्लूरल कैविटी के अंदर एंटर नहीं हो पाए ड्यू टू द वाटर सील चैम्बर. अगर यहाँ पे आप वाटर सील चैम्बर ना होता, आप इसमें वाटर ना डालते वाटर सील चैम्बर के अंदर, तो फिर क्या होता? तो फिर एयर मूव कर सकती थी लंग्स में. मैम एक्सटर्नल ठीक है, एनवायरनमेंट से एयर और ये very good, that air can enter into the pleural space. Okay, water oscillates, moves up as the client inhales. This is important. ये आपको MCQs में आ सकता है कि वाटर सील चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड है इंस्पायरेशन के साथ उसका लेवल ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा. ठीक है, और एक्सपायरेशन के साथ उसका लेवल ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा. ओके, मैं आप लोगों के फिगर पे ले जाती हूँ जहां से आपको आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर हम वाटर सील चैम्बर की बात करते हैं, ठीक है, दैट इज द वाटर सील चैम्बर. ये आपको येलो दिख रहा होगा. ठीक है, ये कैलिब्रेटेड है, ये इस फिगर में कैलिब्रेटेड नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वाली फिगर में आपको दिखाऊंगी उसमें कैलिब्रेटेड है. ठीक है, इसमें हम एक प्रेशर इसका मेंटेन रखते हैं और आपको बता देते हैं, जैसे आपके पल्मोनोलॉजिस्ट हैं या चेस्ट ट्यूब इंसर्ट जिन्होंने की है, ठीक है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, दे विल टेल यू अबाउट द लेवल ऑफ द वाटर, कि आपने वाटर का लेवल कितना रखना है. आप जो है वो इसके अंदर वाटर इंसर्ट करते हैं और ये जो लेवल है, ये वाटर सील चैम्बर के अंदर जो लेवल है ये कंट्रोल करता है आपकी, किसको कंट्रोल करता है? कि कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, सक्शन को कंट्रोल करता है. ठीक है, ओके. अब हम इसी वाटर की बात करें कि जब पेशेंट इंस्पायर करेगा, व्हेन द पेशेंट गेट इंस्पायरेशन, व्हाट हैपेंड विद दिस वाटर. सो व्हेन योर पेशेंट will inspire, it will leads to the raise of that level. ठीक है, ये जो वाटर सील चैम्बर के अंदर वाटर है इसका लेवल इंस्पायरेशन के साथ रेज कर जाएगा और जब पेशेंट एक्सपायर करेगा, फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूट्रल, ठीक है, ये यहाँ तक वाटर है, तो जब आपका पेशेंट इंस्पायर किया, फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक चला जाएगा. ठीक है, ये ब्लू के लेवल पे चला जाएगा. और अगर हम बात करते हैं कि जब आपका पेशेंट एक्सपायर करेगा तो इस लेवल से ये बिलो आ जाता है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? That what do you mean by the what happened with the water during the inspiration and expiration? ये important है. ठीक है, कि इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है और एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है. ठीक है, इज एवरीथिंग क्लियर? यस तंजीला, मुखीराम? Yes, and decrease होगा. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इट विल गेट इंक्रीज. और मैम Yes. ये वाटर सील चैम्बर Okay. के उस नाउ अपोजिट इन पॉजिटिव मैकेनिकल.
वाटर सील पूछे। चैम्बर के थ्रू हमें ये भी पता चलता है मैम कि ट्यूब इंटैक्ट है कि नहीं। एयर लीक, यस एयर लीक है कि नहीं वो हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देन yes, opposite in positive mechanical ventilation, if your patient is on the mechanical ventilation that act on the basis of the positive mechanical ventilation, then it will get opposite कि एक आपका पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर भी है और आपके पेशेंट को चेस्ट ट्यूब भी इंसर्टेड है, तो फिर वाटर सील चैम्बर के अंदर क्या होगा, देन इट विल डिक्रीज विद इंस्पायरेशन एंड इट विल इंक्रीज विद एक्सपायरेशन। ठीक है, कि अगर आपके पास एक पेशेंट आया वो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे नहीं है लेकिन आपने उसको चेस्ट ट्यूब डाल दी, तो जब आपका पेशेंट इंस्पायर करेगा, ठीक है, तो इंस्पायर के साथ वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपायरेशन के साथ डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पेशेंट वेंटिलेशन के ऊपर भी है, ठीक है, और आपके पेशेंट को चेस्ट ट्यूब भी इंसर्टेड है, देन इट विल मूव अपोजिट टू द नॉर्मल वाटर ऑसिलेशन। एम आई क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉजिटिव मैकेनिकल वेंटिलेशन में वाटर किस तरह से मूव करेगा और विदाउट मैकेनिकल वेंटिलेशन किस तरह से करेगा। ओके, एक्सेसिव बबलिंग इंडिकेट्स एन एयर लीक इन द चेस्ट ट्यूब सिस्टम। और दूसरा वाटर सील चैम्बर आपको क्या इंडिकेट करता है, आपको वाटर सील चैम्बर इंडिकेट करता है कि अगर तो जेंटल बबलिंग है, ठीक है, ठीक है, अगर smaller amount of bubbling है, so it means this is normal, but if it is the excessive bubbling, if it is the कंटिन्यूअस बबलिंग, इंटरमीडिएट बबलिंग हो सकती है, वो अभी हम देख लेते हैं कि इंटरमीडिएट किस में होगी। इंटरमीडिएट बबलिंग हो सकती है और जेंटल बबलिंग हो सकती है, ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग, बट वेन एवर योर पेशेंट हैज द एक्सेसिव बबलिंग दैट विल इंडिकेट एन एयर लीक इन द चेस्ट ट्यूब सिस्टम, कि या तो आपकी चेस्ट ट्यूब जो है वो डिसलॉज हो गई है या आपने उसको प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया। अगर स्टिचेस आप प्रॉपर नहीं करते तो वो ऊज भी करती रहती है, और अगर हम उसकी बात करें तो एयर लीक भी वहां से होती रहेगी, ठीक है। और इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि ना ही एक्सेसिव बबलिंग होनी चाहिए, दैट विल इंडिकेट दैट देयर इज द एयर लीक इन द चेस्ट ट्यूब सिस्टम। एम आई क्लियर? यस मैम। यहाँ तक सबको अंडरस्टैंडिंग हो गई दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाटर सील चैम्बर? यस मैम। ओके, और मैम एक्सेसिव नाइला बबलिंग, कमर। एक्सेसिव ज्यादा बबलिंग होती है तो उसमें हम दोनों कनेक्शन देखते हैं, एक पेशेंट साइड और एक हम जहाँ सक्शन कनेक्ट किया है, दोनों साइड को हमें ऑब्जर्व करना है। यस यस, ये या तो पेशेंट की तरफ से डिसलॉज हो सकती है, या आपका जो सिस्टम है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां से डिसलॉज हो सकती है, या फिर हमारी सक्शन जो है वहां से भी डिसलॉज हो सकती है। लेकिन बेसिकली हम दो पेशेंट कनेक्शन देखते हैं और हम चेस्ट ड्रेनेज साइड देखते हैं, ठीक है। दैट विल इंडिकेट दैट देयर इज एन एयर लीक प्रेजेंट, और उसकी डिफरेंट हो सकती हैं। ओके, और ये कॉलम अगर वाटर के साथ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के साथ मूव करता है, यानी वाटर सील चैम्बर के अंदर जो वाटर है वो उसका लेवल अप भी होता है विद इंस्पायरेशन, और एक्सपायरेशन के साथ डाउन भी होता है, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज टाइडलिंग। अगर टाइडलिंग हो तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना दैट व्हाट इज दिस, इट इज ऑल्सो नोन एज टाइडलिंग। और अगर ये टाइडलिंग नहीं हो रही, सो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है, कि ये जो है हम बबलिंग की भी बात करें, इसके अलावा जो है वो हम इसमें स्टेसिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो कॉलम मूव करना चाहिए। ओके, देन सक्शन कंट्रोल चैम्बर। आपने जो बताया सक्शन, अगर एक्सेसिव बबलिंग है तो फिर लीकेज है, और अगर बबलिंग नहीं है तो फिर हम किस चीज को चेक करेंगे? बबलिंग जो है नॉर्मली बबलिंग नहीं होती, ठीक है, सो इट मींस योर ट्यूब इज इंटैक्ट, इट इज पेटेंट। आपने कहा ना नॉर्मल लिटिल सी बबलिंग होती है। नॉर्मल, चाहे बबलिंग हो चाहे कोई बबलिंग भी ना हो, अगर हम नॉर्मल फाइंडिंग की बात करें तो कोई बबलिंग नहीं होनी चाहिए। बट इफ द जेंटल बबलिंग, सो इट मींस दिस इज नॉर्मल, बट एक्सेसिव बबलिंग कभी भी नहीं होनी चाहिए। अब ये हम देख लेते हैं कि जेंटल बबलिंग और इंटरमीडिएट बबलिंग किसमें होगी। निमोथोरेक्स में अगर हम बात करते हैं तो एयर अकामुलेट होती है इकरा, कि फ्लूइड अकामुलेट होता है। एयर होती है मैम। यस यस, जब एयर अकामुलेट हुई है तो एयर नहीं बाहर निकलना है ना, तो जब एयर बाहर निकलेगी तो जेंटल बबलिंग हो सकती है, इंटरमीडिएट बबलिंग हो सकती है, बट इफ इट इंडिकेट्स द कंटिन्यूअस बबलिंग, सो इट मींस देयर इज एन एयर लेक प्रेजेंट।
मैम बबलिंग नहीं है तो ये अच्छी बात है, मीन्स निमोथोरेक्स अभी नहीं है। जब कॉलम मूव कर रहा है बबलिंग नहीं है तो मीन्स अभी निमोथोरेक्स नहीं है, बट चेस्ट ट्यूब इज इंटेक्ट। Saima, no. Um, you are right to some extent, but you have to clarify here that if you are inserting the chest tube especially due to the pneumothorax, तो फिर आपकी gentle bubbling हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं न्यूमोथोरेक्स वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि बाद में डेवलप हो जाए, लेकिन न्यूमोथोरेक्स इटसेल्फ इज द इंडिकेशन फॉर द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। तो हम वही बात कर रहे हैं कि अगर उसमें चेस्ट नीमोथोरेक्स है तो उसमें भी ये नॉर्मल है, और अगर इसको हीमोथोरेक्स है या तो जेंटल बबलिंग हो सकती है, और इसको आप नॉर्मली ही कंसीडर करते हैं। बट बेटर क्या होता है, बेस्ट क्या होता है कि इसमें बबलिंग नहीं होनी चाहिए। नाइला, आप अपना माइक ऑफ करें। ठीक है इकरा, एम आई क्लियर? मैंने आपको जेंटल बबलिंग का इसलिए बता दिया बिकॉज ये आपको इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। यस इकरा, क्लियर है दैट व्हाट डू यू मीन बाय जेंटल बबलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेसिव बबलिंग, एंड व्हाट डू यू मीन बाय नो बबलिंग? और जब आपका नीमोथोरेक्स ठीक हो जाता है ना, फिर भी एयर बबलिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। ओके, then the suction control chamber provides the suction which can be controlled to provide negative pressure to the chest. Okay, this chamber is filled with various levels of water to achieve the desired level of suction. Without this control, lung tissue could be sucked into the chest tube. So हमने पहले भी डिस्कस किया था। अभी हम सक्शन कंट्रोल चैम्बर की जब बात करते हैं तो सक्शन कंट्रोल चैम्बर शुड बी फिल्ड विद द वेरियस लेवल्स ऑफ वाटर। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, लेकिन अगर हम बात करें तो आप इसका कितना लेवल मेंटेन करते हैं? यस साइमा, बिकॉज आपका चेस्ट ट्यूब इंसर्शन के साथ आपने उनको देखा भी है, तो कितने सेंटीमीटर ऑफ वाटर के ऊपर आप मेंटेन करेंगे सक्शन कंट्रोल चैम्बर का लेवल? वाटर में हम मैक्सिमम 300 तक डालते हैं, 200 to 300। ओके, आप ड्राई की बात नहीं कर रही, आप ट्यूब की बात कर रही हैं, दैट इज पोर्टेबल स्पेसिफिकली ट्रांसपेरेंट ट्यूब। हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें जिसके अंदर ये 3 चैम्बर्स हैं, मैं उसमें वाटर की बात कर रही हूँ। उसमें -20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक जो है वो लेवल तक आपने वाटर डालना है, -20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। क्लियर? जो साइमा आप बात कर रही हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यस मैम, मैं बॉटल की बात कर रही हूँ। एक तो मतलब वो पहले से ही फिक्स आता है, एक में हम लोग खुद मैनुअली डालते हैं मैम। इसाइमा, हमारे पास जो है वो कुछ होते हैं जिनके अंदर मैनुअली वाटर होता है, बट आपको नहीं पता होता है जब हम इसकी ट्यूब की प्रिपरेशन करते हैं। तो आपको पता है चेस्ट ट्यूब की प्रिपरेशन पहले ड्रेनेज सिस्टम की हम कैसे करते हैं? हम उसके अंदर वाटर डालते हैं, -20 सेंटीमीटर तक वाटर डालते हैं उसके अंदर। ठीक है, बिकॉज अगर एवेपोरेशन से वो लेवल कम हो जाए सो इट मीन्स ये ट्यूब जो है वो उसकी पेटेंसी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो सक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं वो सक्शन अप्लाई नहीं करेगा, नेगेटिव प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। सो इसी वजह से जितना आपको रिक्वायर्ड है कि अगर -20 सेंटीमीटर एवेपोरेशन भी होगी, है ना, इन्वायरमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, तो हो सकता है -15 हो जाए। तो आपने उस वाटर को कंटिन्यूअस चेक करते रहना है। इट शुड बी एट द प्रेस्क्राइब्ड लेवल सक्शन कंट्रोल चैम्बर। ठीक है, सो ड्रेनेज सिस्टम हम उसकी बात करें जिसमें 3 चैम्बर्स हैं। सो इट इज द वेट कंट्रोल चैम्बर। अभी हम ड्राई भी देखेंगे कि जिसके अंदर आप वाटर नहीं डालते। ठीक है साइमा, जो आप बात कर रही हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बॉटल होती है जिसमें 200 to 300 ml हम नॉर्मल सेलाइन डालते हैं, और उसको स्पेसिफिकली हमारे आईसीयूज के अंदर तो उसको हम यूटिलाइज करते थे फॉर द नीमोथोरेक्स। ठीक है, और कुछ हीमोथोरेक्स के लिए भी इसको यूटिलाइज कर लेते हैं वो ऐसे पेशेंट्स को जिनको आप डिस्चार्ज कर देते हैं विद द चेस्ट ट्यूब। ठीक है, ओके। Gentle bubbling in this chamber indicates that there is suction and does not indicate that air is escaping from the pleural space. ठीक है, सो जेंटल बबलिंग अगर हो रही है सक्शन कंट्रोल चैम्बर के अंदर भी, ठीक है, सक्शन कंट्रोल चैम्बर के अंदर अगर जेंटल बबलिंग हो रही है, सो दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। यस मैम, नॉर्मल। ओके, यस मैम, नॉर्मल कंडीशन। ओके, सो ड्राई सक्शन सिस्टम। अभी तक हमने वेट सिस्टम पढ़ा था जिसमें एक में आपने पानी डालना है, ठीक है, और कुछ में आपने कहा था ना साइमा कि ऑलरेडी वाटर उसके अंदर होता है, ऐसे ही? यस मैम, यस।
दैट आर द ड्राई सिस्टम, उसके अंदर आप पानी नहीं डालते, ठीक है। सो ड्राई के अंदर हम पानी नहीं, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के अंदर के क्या होगा। दिस इज अनदर टाइप ऑफ चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम बिकॉज दिस इज ए ड्राई सक्शन सिस्टम, एब्सेंस ऑफ बबलिंग इज नोटेड इन द सक्शन कंट्रोल चैम्बर, ठीक है। कि अगर हम सक्शन कंट्रोल चैम्बर जो है वो उसमें देखते हैं तो उसमें एब्सेंस ऑफ बबलिंग होती है बिकॉज दैट इज द ड्राई सिस्टम। अ नॉब ऑन द कलेक्शन डिवाइस इज यूज्ड टू सेट द प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ सक्शन। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं ना कि आपके पास शक्कर मशीन होती है, आप उसका एक लेवल मेंटेन करते हैं कि आपने कितना प्रेशर अप्लाई करना है। अगर हम नॉर्मल ट्रेकियोस्टमी की सक्शन भी करते हैं, हम एक नॉर्मल वेंटिलेटेड पेशेंट की सक्शन भी करते हैं, ईडी ट्यूब की सक्शन भी करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, आपका एक प्रेशर सेट होता है सक्शन मशीन का। इसी तरह से अगर हम यस बात मैम। करें, हमने कहा चेस्ट ट्यूब के, यस, चेस्ट ट्यूब के ऊपर भी हमारा एक नॉब होता है, एक हमारा एक डायल होता है, एक मॉनिटर होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जर्विंग द प्रेशर, ठीक है, सेक्शन ऑफ द प्रेशर। वो हमें अभी मैंने नेक्स्ट जो है वो एक इमेज डाला है, वहां से मैं आपको बता देती हूँ। देन द वॉल सेक्शन सोर्स डायल इज turned until a small orange floater valve appears in the window on the device. Okay, now move on to the picture. This is the dry suction chamber. मैं जिसकी बात कर रही थी, अब इसमें वाटर सील चैम्बर नहीं होगा, ठीक है, उसका कोई और पर्पज है। अगर ये वाला वाटर है, इसका कोई और पर्पज है, इसके अंदर हम बबलिंग देखेंगे, एयर लीकेज देखेंगे। दिस इज द एयर लीकेज मॉनिटर। एम आई क्लियर? सो दिस इज द, ये वाला जो ऑरेंज वेल्व है, ये जहाँ पे होगा -20 पे है, सो इट मीन्स आप -20 के ऊपर क्या कर रहे हैं, इतनी सक्शन आप अप्लाई करें। दिस इज द ऑरेंज वेल्व। अगर ये फॉर एग्जांपल ये बाहर की तरफ है ना, इन्फ्लेटेड है, सो इट मीन्स देयर इज द करेक्ट प्रेशर अप्लाइड ड्यूरिंग सक्शन, ठीक है। और अगर ये डिफ्लेट रह जाता है, सबसे पहले तो इसको इन्फ्लेट होना चाहिए। अगर ये डिफ्लेट है, सो इट मीन्स योर सक्शन प्रेशर इज नॉट सफिशिएंट। तो इसके अंदर हम इन्हीं दो की बात करें, ए नॉब ऑन द कलेक्शन डिवाइस is used to set the prescribed amount of suction. Then the valve suction source dial is turned until a small orange floater valve appears in the window on the device. हम किसकी बात कर रहे हैं, ये कि अगर आप सक्शन करेंगे तो ये इन्फ्लेट हो जाएगा, ठीक है, इट विल गेट इन्फ्लेटेड। क्लियर है सबको? और ये वाला जो डायल है, ये वाला डायल सक्शन प्रेशर जो है वो उसको, जैसे अगर हमें मैंने आपको पहले भी कहा कि वाटर सील चैम्बर के अंदर आप कितना वाटर डालते हैं, -20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अगर आप इसका देखेंगे, ये ऑरेंज डायल के ऊपर अगर आप देखेंगे, ये जो ऑरेंज निडल आप समझ लें इसको, जो इंडिकेट कर रही है, वो क्या इंडिकेट कर रही है, दैट प्रेशर इज ऑन द -20 डिग्री। और ये अगर आप देखेंगे, ये लिखा भी हुआ है, ड्राई सक्शन वाटर सील चैम्बर, ठीक है। सो 10, 20, 30, 40, 50, तो जितनी ड्रेनेज आती है आप इसको फिर परमानेंट मार्कर से मार्क कर देते हैं, ठीक है। वो अभी हम देख लेते हैं कि आप इसको किस तरह से करें। अब आप लोगों को आइडिया हो गया दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई सक्शन सिस्टम एंड द वेट सक्शन सिस्टम। पीछे वाला हमने जो भी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कहा हम वाटर डालते हैं, और वाटर सक्शन चैम्बर है, सॉरी सक्शन चैम्बर है, सक्शन चैम्बर के अंदर भी वाटर होगा, और एक वाटर सील चैम्बर है, ठीक है। एम आई क्लियर? यस मैम। ओके, कोई और जिसको इसमें क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो? ओके, ऑल क्लियर, तो हम आगे चलते हैं। पोर्टेबल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, साइमा आप इसी की बात कर रहे थे कि हम कितना इसके अंदर वाटर डालेंगे? यस मैम। यस मैम, इसमें। ओके, ओके। Small and portable chest drainage system are also available and are dry system that use control flutter valve, ठीक है, control flutter valve to prevent the backflow of air into the client's lung, ठीक है। अब अगर हम इसमें कह रहे हैं कि सक्शन कंट्रोल चैम्बर नहीं है, इसके अंदर ड्राई सक्शन नहीं है फॉर एग्जांपल, और वाटर सील चैम्बर, हम कह रहे हैं कि इसके अंदर ड्राई कंट्रोल फ्लटर वेल्व हो सकता है, that will prevent the backflow of air into the client's lung. Principles of gravity and pressure, कि अगर आप सक्शन अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इसमें फ्लो कैसे होगा, that is through the principles of gravity and pressure, and the nursing care involved are the same for all types of system, and these system allow greater ambulation,
and allow the client to go home with the chest tubes in place. ठीक है, सो अगर हम पोर्टेबल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम अप्लाई कर देते हैं तो आप जो है वो पेशेंट को इसके साथ डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इसके साथ आपको वॉल Yes, सेक्शन ma'am. अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट आर द इंटरवेंशंस. अब इंटरवेंशंस इंपॉर्टेंट हैं. कलेक्शन चैम्बर. व्हाट इज द कलेक्शन चैम्बर? जिसके अंदर ड्रेनेज आ रही थी, तो क्या आप ड्रेनेज को मॉनिटर करते हैं? यस, आपने ड्रेनेज को मॉनिटर करना है. Yes, ma'am. मॉनिटर करते ड्रेनेज हैं. नोटिफाई द प्राइमरी. यस, यस करते हैं. इफ ड्रेनेज इज मोर देन 70 to 100 ml पर आवर, ये आपने याद रख. ठीक है, अगर हम बात करें, हम कहते हैं 30 ml पर आवर है तो इट्स नॉर्मल, बट व्हेन इट गेट एलिवेटेड देन द 70 ml or 100 ml per hour, so it means you have to inform healthcare provider. और if drainage becomes bright red or increases suddenly, ये suddenly increase हो जाए या फिर ब्राइट रेड कलर की हो, तो आपने अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है. मार्क द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज इन द कलेक्शन चैम्बर एट 1 to 4 hour इंटरवल्स यूजिंग ए परमानेंट मार्कर. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि कैलिब्रेशन जो है वो आप परमानेंट मार्कर के साथ उसको मार्क कर देंगे कि अभी 1 hour के अंदर इतना. बिकॉज जब आप हैंड ओवर करते हैं ना अपने पेशेंट चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज वाले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल इनकी शिफ्ट में 70 ml पर आवर जो है वो कलेक्ट हुआ था और उन्होंने इसको मार्क नहीं किया. आप आएंगे, आप आके उसको दोबारा से कैलकुलेट करके लिख देंगे. ठीक है, तो 140 हो गया, बट इन द पेशेंट इट्स ओनली द 70 ml. ठीक है, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू यूज अ परमानेंट मार्कर व्हाइल मार्किंग द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज. वाटर सील चैम्बर. मॉनिटर द फॉर द फ्लक्चुएट द फ्लूइड लेवल इन द वाटर सील चैम्बर. फ्लक्चुएशन और टाइडलिंग और रेज इन द level of the water and decrease इसका तो with मैम चेस्ट ट्यूब expiration. को These 1 all are the hour के same लिए things. ठीक है, मार्किंग चाहे आप करनी फ्लक्चुएशन होती आप, है. यस हम यही कह रहे हैं कि वन आवरली आप कर सकते हैं, 1 to 4 hour इंटरवल्स भी आप कर सकते हैं. ठीक है, जब जब स्टार्ट में होता है फिर तो हम कहते हैं कि 15 मिनट्स, देन 30 मिनट्स, देन 1 आवरली. ओके, ओके. So water seal chamber intervention. So fluctuation in the water seal chamber stops if the tube is kinked or obstructed. अब अगर इसके अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं है, वाटर सील चैम्बर के अंदर टाइडलिंग नहीं हो रही, सो इसका क्या मतलब है? सो इट मींस द ट्यूब इज किंक्ड or obstructed, or if a dependent loop exists. ठीक है, if the suction is not working properly or if the lung has re-expanded. अगर रिजॉल्व नीमोथोरेक्स है तो फिर आप पता कैसे करेंगे कि कौन सी फ्लक्चुएशन भी हो सकती है या सक्शन प्रॉपरली काम नहीं कर रही? अगर लंग की री एक्सपेंशन होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि नीमोथोरेक्स रिजॉल्व हो चुका है? अब आपको चेस्ट ट्यूब रिमूव कर देनी चाहिए, दैट देयर इज द नो फ्लक्चुएशन इन द वाटर सील चैम्बर. आपको कैसे पता चलेगा? आप कैसे कंफर्म करेंगे? थ्रू एक्सरे. ठीक है, तो एक्सरे पे आपको पता चल जाएगा कि लंग या नहीं हुआ. और इसी तरह से मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है. अभी आ रही है? अभी आ रही है मैम. Okay, okay, okay. If the client has a known pneumothorax, intermittent bubbling in the water seal chamber is expected. ये हमने already discuss कर लिया. That if there is the intermittent bubbling in the water seal chamber, then it means your patient, it's normal finding in the pneumothorax. Okay. As air is drained from the chest, an air leak in the system, but continuous bubbling indicates. ठीक है, that continuous bubbling indicates that there is an air leak in the system. Am I clear? That if there is an intermittent bubbling or is there a gentle bubbling, this can be normal, but continuous bubbling always an abnormal finding. Okay. Notify the primary healthcare provider if there is continuous bubbling in the water seal chamber. Then suction control interventions. Gentle, not vigorous bubbling should be noted in the suction control chamber of a wet suction system. ठीक है, उसमें भी विगरस बबलिंग नहीं होनी चाहिए, जेंटल बबलिंग हो सकती है. बट अगर हम बात करते हैं वो अगर जैसे हमने पीछे बात की है वाटर सील चैम्बर की, तो व्हाट इज द बेस्ट कि नो बबलिंग शुड बी प्रेजेंट. ठीक है, कोई बबलिंग नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए वाटर सील चैम्बर में, यही बेस्ट होता है. ओके,
सक्शन कंट्रोल चैम्बर की भी हम वही बात करें, और किसमें, वेट ड्रेनेज सिस्टम में, जिसमें आप वाटर डालते हैं। ठीक है, एडिशनल इंटरवेंशन क्या होनी चाहिए, आप और क्या कर सकते हैं, एक तो हमने चैम्बर को देखना है, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं। एन एक्लूसिव स्टीराइल ड्रेसिंग इज मेंटेन्ड एट द इंसर्शन साइट। A chest radiograph assess the position of the tube and determines whether the lung has re-expanded। हमने यही डिस्कस किया कि जब आप चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं ना, तब भी आपने चेस्ट एक्सरे कराना है। ठीक है, कि ये करेक्ट प्लेसमेंट है, करेक्ट इंसर्शन है। ओके, assess respiratory status and auscultate the lung sounds, assess the chest tube dressing for drainage and palpate the surrounding tissue for crepitus। ठीक है, कि अगर सराउंडिंग टिश्यूज की अगर हम बात करें, you have to auscultate the lung sounds as well as you have to do the palpation for the crepitation, और वो आपको फील होती हैं, क्रेपिटेशंस आपको फील होती हैं पाल्पेशन पे। ओके, मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ एक्सटेंडेड निमोथोरेक्स और द हीमोथोरेक्स। ठीक है, हमने क्या कहा कि आप इसकी इंडिकेशन क्या है, निमोथोरेक्स के लिए आप इसको इंसर्ट कर रहे हैं, बट इट कैन लीड्स टू द एक्सटेंडेड निमोथोरेक्स। ठीक है, अगर एक लोब में था, सॉरी एक साइड पे था, अब निमोथोरेक्स की आप बात कर लें, दोनों साइड्स पे जा सकता है, दोनों लंग्स में हो सकता है, तो एक्सटेंडेड निमोथोरेक्स के लिए और हीमोथोरेक्स के लिए आप अपने पेशेंट को जो है वो मॉनिटर करेंगे। कीप द ड्रेनेज सिस्टम बिलो द लेवल ऑफ द चेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि आपने हमेशा ड्रेनेज सिस्टम को below the level of the chest rachna and the tubes parkings, dependent loops or other obstructions, ensure that all connections are secure। और ये आगे आप हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया, आपको कैसे पता चलेगा कि एयर लीक्स प्रेजेंट है। सो इनकरेज डीप कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है ना कि कॉलम मूव नहीं कर रहा, तो फिर आप पेशेंट को क्या कहते हैं, आपको फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लग रहा है, आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, फिर आप अपने पेशेंट को कहते हैं कि डीपली ब्रीथ करें, या फिर आप उसको कहते हैं कफ करें। ठीक है, सो ऐसे भी आप देख सकते हैं। चेंज द क्लाइंट पोजीशन फ्रीक्वेंटली, प्रमोट द ड्रेनेज एंड वेंटिलेशन। Do not strip or milk a chest tube unless specifically directed to do so by the primary healthcare provider or if agency policy allows it। Okay, never strip or milk the chest tube, otherwise it can lead to the tension pneumothorax। ठीक है, keep a clamp may be needed if the system needs to be। हम क्लैंप कर देते हैं, हम कब क्लैंप करते हैं, यस कौन बताएगा मुझे। मैम क्लैंप जब मैम पेशेंट को शिफ्ट करते हैं तब भी करते हैं, ओके, शिफ्टिंग वेरी के गुड। दौरान। ठीक है, हम शिफ्टिंग में क्लैंप कर सकते हैं, नॉर्मली हम चेस्ट, एक्सीडेंटली आउट हो जाए तब भी कर सकते हैं, सॉरी क्या आउट हो जाए, एक्सीडेंटली अगर आउट हो जाए तो। नो नो, मैं आपको बताऊंगी आगे डिसलॉजमेंट में क्या करते हैं। ठीक है, और जब डिसलॉज ही हो गई, जैसे आप कह रही है ना एक्सीडेंटली रिमूव हो गई है, वो तो चेस्ट ट्यूब रिमूव हो गई, अब चेस्ट ट्यूब उसमें तो आपको क्लैंप करने का कोई फायदा नहीं है ना। हम कह रहे हैं कि पेशेंट के साथ कनेक्टेड है ट्यूब, डिसलॉज नहीं हुई है, फिर आप क्लैंप कब करेंगे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम कह रहे हैं क्लैंप नहीं करना चाहिए। जी जी, मैम वो सक्शन भी करते हैं ना चेस्ट ट्यूब के अंदर से। वही हम कह रहे हैं, डू नॉट स्ट्रिप और मिल्क, आपने उसको सक्शन नहीं करना, मिल्किंग का मतलब यही है। ठीक है नाइला कमर, हम अब आप, सक्शन नहीं हाँ करते जी, हैं, आप उसको अगर वो ज्यादा होता है लेवल तो उसको चेंज करते हैं ड्रेनेज सिस्टम को। यस यस यस, डू नॉट स्ट्रिप और मिल्क, ये उन्होंने कह दिया, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के आईसीयूज की बात करें तो सक्शन कर देते हैं साइमा, नाइला भी ठीक कह रही हैं, बट थेरेटिकली एंड अकॉर्डिंग टू दी रिसर्चेस दिस इज नॉट द राइट थिंग टू परफॉर्म। ठीक है नाइला कमर, तो इसीलिए ना ही हमने उनको उसको मिल्किंग नहीं उसकी करनी यस होती। मैम। ओके, never clamp a chest tube without a written prescription from the primary healthcare provider। जैसे अभी हमें साइमा ने बताया that when you are going to transfer your patient for some diagnostics, ठीक है, या आप तब क्लैम्प एनी करते हैं जब प्रोसीजर्स। जब आपको प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन्फॉर्म करेगा। नो, आप किसी प्रोसीजर में खुद उसको क्लैम्प नहीं कर सकते, अगर आप क्लैम्प कर देते हैं तो इट कैन लीड्स टू द टेंशन नीमोथोरेक्स। तो आपको कभी भी क्लैंप नहीं, हाँ हम तब क्लैंप कर देते हैं जब आपका प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको कहे एट ए टाइम अगर ड्रेनेज हो रही है, फॉर एग्जांपल किसी किसी की 2.5 लीटर हो सकती है
और 2500 ml, ठीक है। सो आप एट ए टाइम 1 to 1.5 ml से ज्यादा ड्रेनेज नहीं करते। अगर इससे ज्यादा ड्रेनेज हो रही है फिर आप इसको क्लैम्प करते हैं। इससे ज्यादा ड्रेनेज नहीं होनी चाहिए, इट शुडंट बी ग्रेटर देन 1 to 1.5 ml, अदरवाइज इट कैन लीड्स टू द री एक्सपेंशन एडिमा, ठीक है। कि, कितने तक ड्रेनेज जो है वो आप करवाएंगे किसी भी फ्लूइड की, 1 to 1.5 ml, ओके। नेवर, हम सिर्फ और सिर्फ कीप अ क्लैंप जब आप चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, जैसे अभी उन्होंने कहा, साइमा ने कहा था कि हम उसकी सक्शन नहीं करेंगे, हम उसको चेंज करते हैं चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को। तो जब आपने चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम चेंज करना होता है तब आप क्लैंप कर सकते हैं, ठीक है। सो जब जब आप जो है वो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको कहे, जब आपने पेशेंट को ट्रांसफर करना है और जब आपने पेशेंट को ड्रेनेज सिस्टम चेंज करना है, ओके। नेवर क्लैंप अ चेस्ट ट्यूब विदाउट अ रिटन प्रेस्क्रिप्शन। ट्रांसफर कर सकते हैं ना सॉरी क्लैम्प? इकरा, क्या कह रही हैं? ड्यूरिंग ट्रांसफर कर सकते हैं ना क्लैम्प? यस यस, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ओके। If the drainage system cracks or breaks, insert the chest tube into a bottle of sterile water। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको क्लिनिकल सेटिंग में आपकी क्लिनिकल सेटिंग में भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पेशेंट की ट्यूब से डिसलॉज हो गया। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू प्लेस द चेस्ट ट्यूब इनटू ए बॉटल ऑफ स्टीराइल वाटर, रिमूव द क्रैक्ड और ब्रोकन सिस्टम एंड रिप्लेस इट विद ए न्यू सिस्टम, ठीक है। सो यू कैन प्लेस द चेस्ट ट्यूब इनटू ए bottle of sterile water. Am I clear? Okay. When tube get dislodgement, cover with sterile dressing. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिसलॉज की बात करते हैं, हम कहते हैं ट्यूब रिमूव हो गई है, पेशेंट साइड से रिमूव हो गई है, ठीक है। जब हमने पेटेंसी चेक करने को कहा था तो साइमा ने भी हमें बताया था, हमारे साथ डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को बताया था दैट एक हम पेशेंट की साइड चेक करते हैं, एक आप ड्रेनेज सिस्टम की साइड चेक करते हैं, ठीक है। अगर ड्रेनेज सिस्टम से ट्यूब जो है डिस्कनेक्टेड हो गई है फिर आप उसको स्टीराइल वाटर में डाल सकते हैं, बट इफ इट्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दी पेशेंट फिर आप क्या कर सकते हैं, कवर विद स्टीराइल ड्रेसिंग विद टेप ऑन 3 साइड्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है कि आप फिर क्या करते हैं, आप स्टीराइल ड्रेसिंग के साथ आप 3 साइड्स के ऊपर टेप लगा देते हैं और आप एक साइड ओपन रखते हैं। क्यों ओपन रखनी है? ताकि एयर रिमूव होती रहे, ठीक है, ताकि एयर रिमूव होती रहे, टू प्रिवेंट द टेंशन निमोथोरेक्स। 3 साइड्स आर टेप्ड एंड 1 साइड इज ओपन। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर डिसलॉजमेंट हो जाती है, ठीक है इकरा, कि आपकी ट्यूब पेशेंट की तरफ से डिसलॉज हो गई है। यस मैम। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, ओके। रिमूवल ऑफ द चेस्ट ट्यूब, ये भी आ सकता है कि आप पेशेंट को रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब में होल्ड कराएंगे, एक्सहेल कराएंगे, इनहेल कराएंगे। So depending on the PHCP preference, when the chest tube is removed, the client may be asked to take a deep breath and hold it and tube is removed। और आपने जो है वो ट्यूब रिमूव कर देनी है, पेशेंट को कहना है डीप ब्रेथ ले और होल्ड कर ले। देयर आर द टू प्रोसीजर्स, ठीक है। और द क्लाइंट में बी आस्क्ड टू टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सहेल एंड बियर डाउन, जैसे वाल्सल्वा मैनोवर में करते हैं। अ ड्राई स्टीराइल ड्रेसिंग, petroleum gas dressing or telfer dressing depending on the PHCP's preference is taped in place after removal of the chest tube, ठीक है। ठीक है, आपके प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की प्रेफरेंस है कि वो कौन सी जो है वो ड्रेसिंग यूटिलाइज करना चाहता है, ठीक है। तो आपने मैम ये दो टेल्फा प्रोसीजर, ड्रेसिंग क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग है ना, जैसे हम नॉन एडहेरेंट हो सकती हैं, ठीक है। कोई नॉर्मल गॉज यूज कर लेता है, कोई टेल्फर ड्रेसिंग नॉन एडहेरेंट ड्रेसिंग होती है, कोई जो है वो पेट्रोलियम गॉज ड्रेसिंग। ये आप जो है वो स्पेसिफिकली प्रेस्क्राइब करके ये आप लिख के देते हैं तो आपको फार्मेसी से मिल जाती है, ठीक है। इसमें अब्जॉर्बेंट कॉटन मैम पैड्स होते हैं। मैम के और वाल्सल्वा सॉरी साइमन, मैनोवर क्या है मैम? वाल्सल्वा मैनुअल इन्होंने बताया कि आप अपने पेशेंट को क्या कहेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ लेगा, एक्सहेल करेगा, देन बियर डाउन करेगा, ओके। जैसे कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स होते हैं ना, when they do the bear down, that is basically the Valsalva maneuver। तो वो क्या करेगा, abdominal प्रेशर इंक्रीज कर देता है ना, कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट जो मैनवर करते हैं, दैट इज द Yes, ma'am. वाल्सल्वा मैनवर, ठीक है। तो आप इजीली ट्यूब को रिमूव कर सकते हैं। तो ये दो प्रोसीजर हैं कि वो या तो डीप ब्रेथ करके होल्ड कर ले
You have deep breath करके exhale करें और then bear down करें. So that was the removal of the chest tube. ठीक है, clear है यहाँ तक? हम MCQs डिस्कस कर लें. Yes, ma'am. Okay. You are providing care to a patient with a chest tube. On assessment of the drainage system, you need continuous bubbling in the water seal chamber and oscillation. Continuous bubbling. Which of the following is the correct nursing intervention for this type of finding? Reposition the patient because the tubing is kinked. Continue to monitor the drainage system. Increase the suction to the drainage system until the bubbling stops. Check the drainage system for an air leak. Yes. आप लोग hand raise करें. Yes, Naila. Ma'am, 4. 4. Okay. Set the drainage for Okay. ठीक है. इकरा रूज. Ma'am, 4. 4. Okay. Yes, Tanzila. Uma. मैम 4. 4. Okay. इसका मतलब आप सबको क्लियर है. अब हम क्या कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस बबलिंग. सो इट मींस चेक द ड्रेनेज सिस्टम फॉर एन एयर लीक. रीपोजिशन द पेशेंट बिकॉज द ट्यूबिंग इज किंक्ड. जब आपकी ट्यूब किंक्ड है तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा ट्यूब किंक है? फिर रीपोजिशन मैम आप करें. बिल्कुल भी बबलिंग कुछ भी नहीं होगा. नॉर्मल जो होता है वो टाइडलिंग वो भी नहीं होगा. यस. मैम व्हाट कॉलम नहीं मूव नहीं हो रहा है. यस, कॉलम मूव नहीं कर रहा. जैसे इंस्पायरेशन के साथ इंक्रीज हो रहा है और एक्सपायरेशन के साथ डिक्रीज हो रहा है वो नहीं होगा. ओके, वेरी गुड. A patient is receiving positive pressure mechanical ventilation and has a chest tube. When assessing the water seal chamber, what do you expect to find? The water in chamber will increase during inspiration and decrease during expiration. There will be continuous bubbling noted in the chamber. C. The water in the chamber will decrease during inspiration and increase during expiration. The water in the chamber will not move. Yes. Yes, Naila. आपने हैंड रेज किया. Yes, Ikra. मैम, C. C. Okay. Huma Sumaira. मैम हमने इसमें नेगेटिव प्रेशर की बात की थी, तो यहाँ वो पॉजिटिव प्रेशर कह रहा है. मैंने आपको पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिकल वेंटिलेशन बताया था कि उसके अपोजिट हो जाएगा. नॉर्मली नेगेटिव होता है जब हमारी चेस्ट कैविटी में नेगेटिव प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है. बट व्हेन वी आर पुटिंग यू आर पेशेंट ऑन द मैकेनिकल वेंटिलेशन ऑन द वेंटिलेटर, सो इट मींस यू आर गिविंग द पेशेंट पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिकल वेंटिलेशन. तो आप पॉजिटिव प्रेशर दे रहे होते हैं, तो उसके अपोजिट हो जाता है. सी मैम. यस. ठीक है. सो सी इज द राइट आंसर. ये मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए डाला था कि इसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं. What type of chest tube does this statement describe? This chest drainage system has no water column to control suction, but uses a suction monitor bellow that balances the wall suction, and you can adjust water suction pressure using the rotary suction dial on the side of the system. It allows for higher suction pressure levels, has no bubbling sounds, and water does not evaporate from it as with other systems. Mediastinal chest tube system, dry suction chest tube system, wet suction chest tube system, dry wet suction chest tube system. Yes. And raise the- Yes, Ikra. मैम वेट सक्शन चेस्ट ट्यूब सिस्टम. दोबारा देखो. उसने कहा नो वाटर कॉलम. नो वाटर कॉलम टू कंट्रोल सक्शन. सक्शन मॉनिटर है. यस मैम, आई विल चेक अगेन. ड्राई मैम. बी. Yes, B. very good. हम क्या कहेंगे? Yes, B is the right answer. Try yes, yes, Saima. B is the right answer. Because हम क्या कह रहे हैं? सक्शन मॉनिटर है. और सक्शन मॉनिटर किस में था? ड्राई सक्शन में था, जिसके ऊपर हमने कहा था कि सक्शन डायल है या सक्शन मॉनिटर है, जिसमें आप देखेंगे कि -20 सेंटीमीटर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है. और उसके साथ साथ हमने ये कहा था कि ये जो ऑरेंज कलर का वेल्व है वो इन्फ्लेट होना चाहिए. जब वो इन्फ्लेट नहीं होगा, so it means correct suction is not applied. So that is the dry suction chest tube system. सबको क्लियर हो गया? हुमा, Yes, ma'am. सुमेरा, नाइला, मुखीराम. यस मैम. यस मैम. ओके.
The patient in room 2569 calls on the call light to tell you something is wrong with his chest tube. When you arrive to the room, you note that drainage system has fallen on its side and is leaking drainage onto the floor from a crack in the system. What is your next priority? Place the patient in supine position and clamp the tubing. Notify the physician immediately. Disconnect the drainage system and get a new one. Disconnect the tubing from the drainage system and insert the tubing 1 inch into a bottle of sterile water and obtain a new system. Yes. मैम डी Yes, Ikra. D. Okay. Simon. D. Okay. Huma. Yes, ma'am. D. Okay. Mukhiram. मैडम बी है D और D. बी बी B नहीं मुखीराम, D. सबसे पहले तो आपको एट द टाइम जो है वो क्या करना है, ड्रेनेज सिस्टम को पहले सिक्योर करना है ना, तो आप उसको स्टीरल वाटर में या नॉर्मल सलाइन की वाटर बॉटल में डाल के फिर आप जो है वो फिजिशियन को इमीडिएटली, सेकंड आपकी प्रायोरिटी फिजिशियन को ही आपने बताना है, बट फर्स्ट यू हैव टू disconnect the tubing from the drainage system and insert the tubing 1 inch into a bottle of sterile water. ठीक है. यस मैम Priority क्या है, तो आपकी priority ये होगी. You are assessing a patient who is post-op from a chest tube insertion. On assessment, you note that there is 50 cc of ceresogenous fluid in the drainage chamber, fluctuation of the water in the water seal chamber when the patient breathes in and out, bubbling in the suction control chamber. Which of the following is the most appropriate nursing intervention? Document your finding as normal. Assess for an air leak due to bubbling noted in the suction chamber. Notify the physician about the drainage. Milk the tubing to ensure patency of the tubes. Yes. What is the right answer? चले मैं ही आंसर कर देती हूँ. हम क्या कह रहे हैं, 50 सीसी फ्लूइड है, ब्राइट रेड नहीं है. कौन सा? डी. यस मैम. चले हम B. इसको डिस्कस कर लेते हैं. नो, राइट आंसर इज ए. यस ए मैम, ए कहाँ है? हम कह रहे हैं कि ओके गिरा, मुझे सुनाई नहीं दिया, आपकी आवाज नहीं आई. ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, सीसी सेरेस्टोजेनस फ्लूइड है और फ्लक्चुएशन भी हो रही है, टाइडलिंग भी हो रही है वाटर सील चैम्बर में, और सक्शन कंट्रोल चैम्बर में तो जेंटल बबलिंग हो सकती है. सो डॉक्यूमेंट योर फाइंडिंग इज नॉर्मल. मैम सेरेस्टोजेनस Yes, फ्लूइड ma'am. मींस सेरस फ्लूइड. ये हम लास्ट एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर आप लोग सर हुजैफ की क्लास ज्वाइन कर लें. अ पेशेंट इज रिकवरिंग फ्रॉम ए pneumothorax and has a chest tube present. Which of the following is an appropriate finding when assessing the chest tube drainage system? Intermittent bubbling may be noted in the water seal chamber. 200 cc of drainage per hour is expected during recovery of a pneumothorax. The chest tube is positioned at the patient's chest level to facilitate drainage. All of these options are appropriate findings. Yes. बहुत आसान है ये भी, हम लोगों ने इतना डिस्कशन कर ली इसके ऊपर. नाइला कमर. हुमा सुमेरा. मैम ऑल ऑफ अबव. 200 ml तो हमने कहा है कि ये तो रिकवरी तो इंडिकेट नहीं ना करता, और निमोथोरिक्स में Ma'am, A. ड्रेनेज होती है, निमोथोरिक्स में तो एयर होती है. मैम ए. यस, ए इज द राइट आंसर. A. A. यस, जब निमोथोरिक्स होगी, मैंने आप लोगों को बार बार बताया, सॉरी. सो इंटरमिटेंट बबलिंग हो सकती है. 200 ml तो हमने तब भी नहीं कहा इमीडिएटली आफ्टर द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन. ठीक है. और यस मैम, वो 70 से 100 ml हाँ बराबर जी, है. और इसके अलावा भी अगर हम थोड़ा सा और इसको कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाएं, तो निमोथोरिक्स में ड्रेनेज तो फ्लूइड की होती ही नहीं, उसमें तो बबलिंग ही होगी. यस मैम. ओके. और चेस्ट ट्यूब इज पोजीशन एट द पेशेंट चेस्ट लेवल. चेस्ट लेवल पे करते हैं, हमने तो कहा था बिलो दी चेस्ट करते हैं. ठीक यस है. मैम, मैंने सही पढ़ा नहीं शायद. ओके ओके मैम. ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है.